Minister's vision of Vishwamitra, a friend to the world. Welcome to Assam. A land of breathtaking beauty, rich culture, and immense economic potential, Assam is not only a place of mysticism and tradition, but also a vibrant hub of innovation, enterprise, and sustainable development. Nestled in the heart of Northeast India, Assam stands as a gateway to ASEAN and Southeast Asia, offering boundless opportunities for global investors. With robust transportation networks, including rail, waterways, and state-of-the-art bridges, Assam ensures seamless access to global markets. Inspired by the Honorable Prime Minister's vision of a Vikasit Bharat and the Honorable Chief Minister's guidance over the past few years, Assam has experienced unparalleled growth. The state's infrastructure is a true testament to progress, with roads and bridges connecting every corner. Advanced transport systems, educational institutions, and skill development centers are empowering the people, paving the way for a brighter future. With medical advancements like cancer care hospitals developed in partnership with Tata Trusts and a network of medical colleges, Assam is setting benchmarks in healthcare and innovation. The state has been a pioneer in producing natural gas and petroleum in the country. The first biorefinery producing fuel-grade ethanol from bamboo has also been established in Numaligarh, paving the way for a dynamic and sustainable future. The state is celebrating 200 years of its rich tea legacy. It continues to seek advancements in other emerging sectors like fragrances and flavors, aerospace and defense, electronics and semiconductors, hydrocarbons and renewable energy. With vibrant dances, exquisite handicrafts, and 3 UNESCO World Heritage Sites, tourism in Assam is a celebration of heritage, culture, beauty, and unity. This cultural legacy, combined with a growing pool of skilled manpower, is shaping a future where the state is poised to lead in all fields, ranging from technology to sustainability. A stable government is the backbone of economic prosperity, from ease of doing business to simplified approvals and seamless land allocation. Assam provides an investor-friendly ecosystem that ensures a smooth and transparent path for growth. With its sights set on the future, Assam is creating opportunities for the ये कहानी है उस संकल्प की जिसने पानी की धाराओं के साथ अनगिनत सपनों को नई दिशा दी। हमारे गांव में एक योजना आई है, जल जीवन मिशन। प्रधानमंत्री जी द्वारा हमारे गांव को स्वच्छ जल घर घर पहुंचाने रहे हैं, जिससे सभी व्यक्तियों का समय बचता है। पहले तो हमारे गांव में पानी के लिए बहुत दिक्कत होती थी। पानी के लिए सोर्स नहीं था। जहां हमारा हैंड पंप था वो पानी 1 ही 2 ही था, क्योंकि वो बहुत खराब स्थिति पे था। सबसे ज़्यादा तो महिलाओं को ही ज़्यादा दिक्कत होती है। पहले घंटों देर तक इंतजार करना पड़ता था हैंड पंप के पास जाकर। गांव वालों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था। पीने के लिए साफ पानी नहीं था, हैंडपंप का पानी सुरक्षित नहीं होने के कारण कई लोग बीमार पड़ जाते थे। जल जीवन मिशन का लक्ष्य हर ग्रामीण परिवार को सुरक्षित और स्थायी नल जल देकर उनके स्वास्थ्य, स्वच्छता और जीवन स्तर में सुधार करना है।
आज हमारे घर में पानी घर में ही पहुंच रहे थे, जिससे हमारे समय बच रहा है। उस पानी भरते भरते खाना बना भी ले रहे हैं और अन्य काम में भी अब जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह पहल किया है, ये योजना तो हमारे समुदाय के लिए, हमारे गांव वालों के लिए बहुत बड़ा योगदान है। सुरक्षित पेयजल अब 15 करोड़ से ज्यादा ग्रामीण परिवारों और 10 लाख से अधिक स्कूलों तक पहुंच चुका है, जिससे लड़कियों को पढ़ाई और नए कौशल सीखने के लिए ज्यादा समय मिल रहा है। प्रधानमंत्री जी को और ये जल जीवन मिशन जो योजना लाया, इसके लिए हम मराठी भाषा इतकी गोड, छान आणि मिठी आहे की ती आपण कधीही विसरणं शक्य नाही आहे आणि त्या भाषेची मी आहे म्हणून मला अतिशय गर्व होतो आणि मला इतका आनंद झाला। मराठी भाषा ही संपूर्ण जगामध्ये 10व्या क्रमांकावरती बोलली जाणारी भाषा आहे आणि संपूर्ण भारतामध्ये 3ऱ्या क्रमांकावरती बोलली जाणारी भाषा आहे। भारताचे माननीय पंतप्रधान यांनी मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा दिला। जो दर्जा मिळालेला आहे तो नुसता साधा दर्जा नहीं है, उच्च दर्जा मिळालेला है। अभिजात भाषा का दर्जा दिया, उससे मैं बहुत खुश हो गई थी और उसके लिए मैंने आभार व्यक्त करने के लिए 4 शब्द आपको लिखा और मुझे खत आया तो मुझे ऐसा लगा कि वो मुझे मिलने ही आए हैं। इतनी मैं आनंदित थी और अकेली आनंद व्यक्त करती थी। किसको बोलूं कि वो आए नहीं है, लेकिन मैं व्यक्त करती हूँ कि वो आनंदित आने से वैशाली ऐसा बोलेगी। सुश्री वैशाली वसंत भंडारी जी, मराठी को अभिजात भाषा का दर्जा दिए जाने पर हर्षपूर्ण पत्र के माध्यम से अपने भाव व्यक्त करने के लिए आभार। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की शौर्य गाथा को पोवाड़ा लोकगीतों के द्वारा लोगों तक पहुंचाने से लेकर स्वराज का विस्तार करने में मराठी साहित्य का योगदान अतुलनीय रहा है। भाषा केवल बातचीत का माध्यम नहीं होती, बल्कि इसके माध्यम से हम संस्कृति और साहित्य से गहरा जुड़ाव बना पाते हैं। अच्छे स्वास्थ्य व सुखद भविष्य की कामना सहित आपका नरेंद्र मोदी। ही मी वैशाली भंडारी आणि मोदीजींना मी त्यांचा सत्कार केशरी खेस आणि फुलांचा हार घालून, मोदी जी आते थे, महाराष्ट्रियन लोगों को बहुत अच्छा लगता था मिलने के लिए और दक्षिणी में सभी महाराष्ट्रियन लोगों के घर ही रहते थे। उन्होंने मुझे सोबई के हमार जोहार। मोर भाई बहन सब दहाने गिर की खबर। यहाँ एक अद्भुत माहौल है, ऊर्जा से भरा हुआ माहौल है। झूमर नृत्य के आप सभी कलाकारों की तैयारी हर तरफ नजर आ रही है। इस जबरदस्त तैयारी में चाय बागानों की सुगंध भी है और उनकी सुंदरता भी है। और आप तो जानते ही हैं, चाय की खुशबू और चाय के रंग को एक चाय वाले से ज्यादा कौन जानेगा। एक समय था जब देश में असम और पूर्वोत्तर के विकास की भी उपेक्षा हुई, लेकिन अब पूर्वोत्तर की संस्कृति का ब्रांड एम्बेसडर खुद मोदी ही बन चुका है।